as you have all seen, like 5 seasons kitna famous tha, and the productions also was huge. This time we have reduced 90% productions because the more people will join, the more it's risky. So we have cut down the stage totally to be secure, be safe. तो हमने क्या किया है, just we have invited you all to be here, and also we have done all the production to be less minimized totally, and just we have invited all the celebs to come and receive their honors and then exit. There is no sittings, there is no keeping all the things and measurements of safetyness in minds. There is nothing like that. So celebrities का क्या reaction था जब invite किया गया, क्योंकि बहुत सारे celebrities डर रहे event में. See, I had invited almost 150 celebrities. 150 में many were like almost pandemic है, we were out. जो कहे they are out already, उनको trophies मिल चुकी है. They have given the bikes also with trophies. Who are in the city, they are present. For sure they are been coming here almost like 115, 120 तक. Everyone are invited and they are coming. So this year कितना challenging था आप लोगों के लिए, पूरा arrangement से लेके सब celebrities को invite करना? See, it was very huge challenging because first of all I'm not from here. I stay outside. First I come quarantine myself for dates to secure everything. Then also my team, they came from Bangalore again to be staying in the same hotel for 4-5 days. Complete मेरी team यही hotel पे quarantine 4-5 दिन से है, safety measures लेके. Then again we took a local support from here to set up everything, and finally we have been into a successful event. तो पिछले साल आपने एक सॉन्ग लॉन्च किया था, आने वाले दिनों में कुछ सॉन्ग लॉन्च या कोई होने वाले हैं, कोई सेलिब्रिटीज को लेके या फिल्म बनाने वाले या कोई वेब सीरीज? See, आने वाले दिनों में आई हैव डन सॉन्ग विद दिगांगना, सारा का भी रिलीज हुआ है. आने वाले दिनों में दिस ईयर आई एम सेंडिंग कांस फिल्म फेस्टिवल एरिका फर्नांडिस. We are sending Erika Fernandez with Aditya Khurana. Last year Shivangi Joshi with Aditya Khurana tha. So this saal Erika Fernandez will hopefully join, and we'll start the shoot very soon with Aditya Khurana. So this is the first pipeline, and second we have a project already. 90% shoot is done of the web series. So that will be soon announced. क्या आप कोई फिल्म में आप काम करेंगे या कोई any planning? I don't want to work as an actor. I am happy to produce and I am happy to direct sometimes, but not as an actor. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. हाँ जाओ उधर से जाओ. Congratulations, आपको इंटरनेशनल एक्टर अवार्ड से नवाजा जा रहा है, क्या कहना चाहिए? यार मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ फ़िलहाल, एंड आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि ऐसी चीज़ों की वजह से ऐसा लगता है कि यस आई एम ऑन द राइट पाथ एंड मैं कुछ बहुत सही कर रहा हूँ. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द इवेंट. विशाल, इसके अलावा आपकी जर्नी के बारे में अगर बात करें तो कितना मतलब प्राउड फील होता है खुद पे, और मतलब इस तरह का अवार्ड से नवाजा जाना एक मतलब बहुत ही प्राइड की बात है. आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब प्राइड की बात तो है, बट आई थिंक यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए. मिलने के बाद भी इधर से मेरे हिसाब से ये मिलने के बाद मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और मुझे ज़्यादा हार्डवर्क करना चाहिए आगे. बट हाँ, मेहनत तो काफ़ी लगी है. आई बीन वर्किंग लाइक फ्रॉम पास्ट 2 years, और 2 years में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो कुछ ना कुछ तो फल मिल रहा है अब. आप तीनों का जो है एक म्यूजिक वीडियो आया था, भाविन आपका और समीक्षा का, क्या जी. कहना चाहेंगे? कौन सा 2 आया था? अभी recently- रोना लिखा था, आया था, दिल की आदत आया था. कौन सा? रोना लिखा था. यार क्या बोलूँ मैं, अभी हम तीनों के, हम लोग का कौन सा लाइक 3rd या 4th सॉन्ग था साथ में, और वो भी हिट गया, इतना बड़ा हिट गया, और टी सीरीज जैसे लेवल पे आया था, तो बहुत अच्छा लगा यार. और जब भी तो हम तीनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठती है, तो आया सॉन्ग आया, अभी कुछ 15 मिलियन प्लस हो चुका है, वो 21 को ही आया था, तो रियली हैप्पी. भाविन और समीक्षा अभी जो एक शो कर रहे हैं जी, हुज योर डैडी 2. राइट, तो क्या कहना चाहेंगे? दोनों की केमिस्ट्री कैसी लग रही है? अगर आपने प्रोमो देखा होगा, उस बारे में कुछ कहना? मैंने प्रोमो तो खैर रिलीज होने से पहले ही देख लिया था, और उनकी केमिस्ट्री तो खैर सबको पता है कि उनकी कितनी अच्छी केमिस्ट्री है, मतलब आपस में, नॉट सिर्फ रियल लाइफ में नहीं, हमारी रियल लाइफ में भी हमारी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है, और आई गेस वो स्क्रीन पर बहुत अच्छे से दिख के आएगी. इसके अलावा आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? मेरे बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, मैं वो बात करने से मना किया गया है, बट आई थिंक विद इन 10 to 15 days एक आध अनाउंसमेंट हो जाएगा. आपने अपनी हेयर
के लिए? 10-15 दिन में. थैंक यू थैंक यू सो मच. डन. जी या सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपको नॉमिनेट किया गया इंटरनेशनल आइकन अवार्ड के लिए, क्या कहना है? थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली. बेस्ट डेब्यू डिजिटल मेल वेब सीरीज़ के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया है. आई एम प्रीटी श्योर कि शायद मुझे अवार्ड मिल जाए. मतलब आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट. सो या इट्स अ बिग थिंग. और मेरी पहली वेब सीरीज़ थी ये क्लास ऑफ 2020 जो कि फेब में रिलीज़ हुई थी. एंड आफ्टर द सक्सेस एकता मैम हैड अनाउंस्ड 4 मोर सीजन्स ऑफ इट, बट ड्यू टू कोरोना हुआ नहीं वो. सो अभी एक और सीज़न आएगा, बट उसके लिए नॉमिनेट किया गया बेस्ट डेब्यू. बहुत बड़ी बात है. एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट. आपके लिए पेंडेमिक का टाइम कैसा रहा रोहन? मुश्किल ही था. काम तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, बट उस पर भी अगर काफ़ी लोग अलग तरह के लोग होते हैं. मैंने उस पर भी मेहनत की, अपनी फिजिक पे मेहनत की, उस पर भी घर बैठ कर. और ऐसा म्यूज़िक एल्बम भी मैंने 2-3 शूट की थी उस टाइम पे. तो जो कर सकता था किया मैंने. अपनी स्किल्स पे काम किया. वन ऑफ माई कज़न सिस्टर्स वो डांस सिखाती है, तो उसने मुझे डांस भी सिखाया 3-4 महीने. तो अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया मैंने. रोहन, बिग बॉस को कितना फॉलो कर पा रहे हैं इस बार? विकास गुप्ता के सी साथ भी हुआ। जो बिग बॉस अगर कोई एक बार चले जाता है ना और एंड तक रहता है, जैसे कि मैं एंड तक था, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना फॉलो करे. क्योंकि हम लोग उससे रिलेट कर पाते हैं. हमें पता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है अंदर, लोग क्या सोच रहे हैं. और सब लोग मतलब हमें पता है एग्जैक्टली उनके साथ क्या बीत रहा है, क्योंकि इतना हम लोग भी उसको गो थ्रू कर चुके होते हैं. सो या बहुत मज़ा आ रहा है इस बारी. विकास अभी फिर से कल अंदर गए हैं. और डेफिनेटली यार मतलब टॉप 4-5 में तो है ही है. मतलब बोलने की ज़रूरत भी नहीं है. रोहन, जो विकास के साथ हुआ, कितनी गलत बात है इस तरह से मतलब निकाल देना. और फिर जो है डेफिनेटली गलत बात है. उनके साथ बहुत बुरा हुआ. और जैसे कि वीकेंड के बारे में भी हमने देखा कि सलमान खान ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. तो उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है. जब सलमान खान ने बोला कि विकास सही है, तो ऑब्वियसली वो सही है. तो या हम सपोर्ट करें, सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं. क्या लगता है कौन किसका जीतने का चांस है इस बार बिग बॉस 14? सी विकास गुप्ता का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि वो एक हफ्ते में, जो उन्होंने एक हफ्ते में कर दिया, ये लोग पूरा सीज़न नहीं कर पाए थे. एक हफ्ते में पूरा अगर आप देखोगे तो सब कुछ उनके आसपास ही चल रहा था. इवन अर्शी वाला चाहे लो, या फिर जो भी उन्होंने रुबीना के बारे में भी बताया कि बाहर ये सब बातें चल रही रुबीना उनके हस्बैंड के बारे में, तो सब कुछ वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे. और अभी फिर से वो अंदर चले गया, तो डेफिनेटली TRPs तो बढ़ ही गई है. तो उनके चांसेस. और रुबीना मेरी सेकंड फेवरेट आफ्टर हिम. रोहन, इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके जो आप जी हाँ, 2-3 म्यूज़िक एल्बम्स मेरी आने वाली है. एक तो क्रिसमस पे ही आने वाली है, और एक अभी मैं दुबई करके आया हूँ. और एक वेब सीरीज़ मेरी आने वाली है ऑल्ट और Z5 के लिए. इट्स कॉल्ड क्रैश. और उसके लिए हम लोग ऑलरेडी शूट कर रहे हैं, और अभी नाइट शिफ्ट है, बस वहीं जा रहा हूँ इसके बाद. रोहन, 2021 अभी फाइनली आने वाला है. क्या रेजोल्यूशन बनाया है 2021 के लिए? क्योंकि 2020 तो सबने घर पे बैठ के निकाला है. आपने क्या 2021 में एक्चुअली ज़्यादा सोचने से कुछ होता नहीं है. जैसे कि बिग बॉस के घर में भी हम ज़्यादा सोचते हैं, वैसा होता नहीं, उल्टा ही हो जाता है. तो 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ. सोचा कुछ और था, बट जो कुछ हम पूरा नहीं कर पाए 2020 में, वो डेफिनेटली 2021 में पूरा करने की कोशिश करेंगे. और अगर आज अवार्ड मिलता है तो शुरुआत तो डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी 2020 के एंड की और 2021 की शुरुआत. तो या जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट. नए साल के लिए कुछ विश करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, वेरी हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस. डेफिनेटली यार, अब इस साल तो जो होना था इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता. वो जब भी मेट का डायलॉग है ना, तो अब तो बस अच्छा ही होना है. तो यार आप लोग भी बस पॉजिटिव रहिए और अच्छे की ओर ही चलते रहिए. थैंक यू सो मच. Thank you, thank ऑल you. द बेस्ट. She has to rush. And she has just come because I have requested. I don't make sense. I'm taking it. Guys, please come there. इधर भाई. Yes, actually ये मेरा 2020 का second award है and I am pretty proud and super happy, super excited for it. This is for most versatile actress of Indian television and I feel कि ये काफ़ी honorable award है because you know TV में बहुत amazing actors हैं, but I really hope and pray कि मैं आगे भी ऐसे अच्छा काम करती रहूँ and सबको impress करती रहूँ. अदिति, 2020 से आपने क्या सीखा? कैसा रहा आपके लिए 2020?
यार 2020 ऑनेस्टली काफ़ी लोगों के लिए अच्छा था, बुरा था, बट मेरे लिए भी मुझे लगता है कि अप्स एंड डाउन्स काफ़ी थे, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा था बिकॉज दैट्स व्हाट आई वाज शूटिंग एज वेल फॉर द शो एंड नाउ आई एम शूटिंग फॉर माई नेक्स्ट शो एज वेल. सो आई थिंक 2020 हैज़ बीन प्रिटी अमेजिंग एंड इन्होंने काफ़ी चीज़ें सिखाई हमें फ्रॉम पेशेंस टू रिस्पेक्टिंग आवर पेरेंट्स एंड नेचर एंड लॉट ऑफ थिंग्स. तो आई थिंक इट हैज़ बीन प्रिटी अमेजिंग. सो 2021 में क्या नया होने वाला है, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, थोड़ा सा उसमें 2021 में I'm already shooting for this web series and it is going to be amazing. OTT platform आजकल आपको पता है in है, so I'm just shooting for that and I really hope सबको बहुत पसंद आए. किस तरह का टॉपिक है वेब सीरीज का, कुछ बताना चाहिए? किसके साथ so, आप कर रहे हो? काफ़ी सारे लोग हैं एक्चुअली इसमें. जैन है, रोहन है, there is अनुष्का सेन, there is Kunj and a lot of other people, and the show is about sibling love, like sibling story, and बहुत crazy होने वाला है, कुछ बहुत interesting होने वाला है. It's gonna be on Z5 and Alt and you will love it. ऑल्ट बालाजी के साथ है? जी. ओके. और बहुत ही आप खूबसूरत लग रहे हैं ड्रेस में. Thank you so much. और आप लग रही है ड्रेस में. Thank you. बताइए कितना टाइम लगा आपको? Yeah, actually, आज तो मैं खुद जल्दी रेडी हुई हूँ because now I have to run for the shoot. But I really hope you guys like it. This is from my own closet and मेरी मम्मा ने मुझे स्टाइल किया है. So yeah, pink is always a good choice. हेलो. Hi. So yeah, हम दोनों साथ शूट कर रहे हैं. हम लोग साथ में शूट कर रहे हैं क्रैश. अभी नाइट शिफ्ट है हमारी, तो हम जा रहे हैं, इसको जाने दो, बाद में मिलते हैं. थैंक यू सो मच. Thank you guys. See you. बस This is the mark. थोड़ा आगे थोड़ा सा little है. थोड़ा आगे सर. हाँ थोड़ा सा. नहीं अभी चलेगा, ऐसे हाथ में लिया तो थोड़ा लग समझ में आया है. But social distance. सोशल. Social you are rather social. Mind to the current please. एक मिनट फोन हटा. एक सेकंड. एक कुछ एक्शन कर देना. I'm making a boomerang. 1 second. भाई आ जाइए लंबी आ जाइए. Social distancing, 1 hour distance. ठीक है, थैंक यू. Guys, just give a side pic. We will do the Jindal first. ठीक है. शुक्रिया. पहली बात है आई थिंक आप सबके लिए आई डोंट नो बट मेरे लिए तो मतलब 8-9 महीने हो गए टू रियली कम टू एन इवेंट लाइक दिस. सोशल डिस्टेंसिंग और अपना मास्क पहनना ज़रूरी है, बट फिर भी अच्छा लग रहा है बाहर आने. पैंडेमिक काफी मुश्किल भरा रहा दिन सबके लिए. आपके लिए क्या आपने कुछ सीखा या कैसा रहा आपके लिए? मुश्किल तो नहीं. आई मीन इट हैज़ बीन टफ. लोगों के लिए मुश्किल था, पर अगेन जैसे आपने कहा देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन ऑल्सो. तो मेरी तरफ से आई थिंक पहली बात है अपने घर पे सब कुछ सारे काम करना मैंने अच्छी तरह से सीख लिया और समझ लिया कि और कोई नहीं करेगा, मुझे ही करना है. सो यू नो इट जस्ट बिकेम अ हैबिट एंड आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट आई विल टेक फॉरवर्ड. मैंने बहुत चीज़ें की एक्चुअली. स्पेनिश सीखने की कोशिश की, गिटार अपना ज़्यादा प्रैक्टिस किया, फैमिली के साथ टाइम बिताया, मतलब बहुत कुछ किया. बट लाइक बुरा तो नहीं हुआ मेरे लिए. मतलब अपार्ट फ्रॉम नॉट वर्किंग एंड नॉट गोइंग आउट एंड नॉट ट्रैवलिंग एंड वो सब तो चलो दे आर लाइक यू नो मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स, बट अदरवाइज आई वाज गुड. क्रिसमस एंड न्यू ईयर स्टार्ट हो जाए तो आपका कोई रेजोल्यूशन है नया साल के लिए? क्या कुछ प्लानिंग है न्यू ईयर एंड? वेल रेजोल्यूशन तो आई थिंक हर साल कुछ ना कुछ होता ही है. This year I think I want to just you know be with myself, cleanse you know because चाहे जो भी है काफ़ी heavy year रहा है I think सबके लिए दुनिया भर में, and it's important to just let it go from your system. और अपनी तरफ से आई थिंक जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर सके अपने एनवायरनमेंट में, अपनी सोसाइटी में, अपने देश में वो ज़रूरी है. सो आई एम जस्ट गोना प्रॉब्ली हैव अ लो की पीसफुल स्टार्ट टू द न्यू ईयर. Any upcoming project would you like to share? Well, there are few projects that are in talks, but I wouldn't want to share unless I start shooting. OTT platform, web series it is or film or television? It is for web as of now, yeah. But I'm open to everything. But बातें तो चलती रहती हैं जब तक कुछ काम फाइनलाइज ना हो और आप शूटिंग ना करो और अब रिलीज ना हो तब तक बोलना
कोई फ़ायदा नहीं है. थैंक यू सो मच. इनको पता है. मास्क निकलवाना. मास्क लेगा. I'm going to take it inside. See, I'm the PR of the. Okay. The guide भाई एक बुमरांग बना रहा है. फिर हो गया. 2 1 टिकटॉक मारी पहले जो आइकॉनिक अवार्ड है कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिलने वाला है आज और क्या फीलिंग है? I think I'm nominated for most stylish TV actor, if I'm not wrong, and it's an honor. Yeah, आपने nominate किया मुझे. It's a big thing for me because I don't think anybody has nominated me for any such award. बहुत सारे यूथ आपको फॉलो करते हैं तो किस तरह के स्टाइल स्टेटमेंट को आप फॉलो करना पसंद करते हैं या फिर रोजमर्रा की लाइफ में आप जीते हैं उस स्टाइल? I mean, people who know me, people who have seen me, they know that I have a very casual approach. I need to feel comfortable with what I'm wearing, and I think that's the main thing. And I also try to be a little innovative. कुछ नया, कुछ original करना चाहता हूँ. That's it. And if it's your thing, if it's your original idea, then I think it's better than anything else. 2020 ने मतलब सबसे बड़ा पेंडेमिक था, सब लोग घर पे थे. आपने 2020 से क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा. It opened my eyes. Honestly, सबके साथ ऐसा ही हुआ है. But I got to do a lot of meditation. मैंने बहुत introspect किया. तो because of that, I guess I realized a lot of things. जिसकी वजह से I think how I live the rest of my life will be not exactly the same it would have been before. पेंडेमिक के टाइम में आपका शो भी काफी फिर से हिट हुआ स्टार प्लस में महाभारत. Yes. तो इस तरह से पॉपुलैरिटी मिलना शो को, क्योंकि इस टाइम बहुत सारी नेगेटिव चल रही थी पूरे देश भर में, और आपके शो ने जो आपका किरदार है उसने काफी पॉजिटिव लोग देखते थे, टीआरपी में भी हाई था. क्या कहना चाहिए? I think hats off to Star Plus जो उन्होंने ये थॉट लाया कि इस महाभारत को लॉकडाउन में वापस टेलीकास्ट करना चाहिए था. इट वाज अ वेरी गुड आइडिया. व्हाई? बिकॉज एवरीवन वाज एट होम. उनको उस पॉजिटिविटी की ज़रूरत थी. एंड I'm happy, very happy that it was re-telecast and it did so well, even better than before, like the initial time when it was on air. 29 को वेब सीरीज आ रही है, कितना एक्साइटमेंट है. काफी लोग बात कर रहे हैं, आपके काम को काफी पसंद किया. ट्रेलर काफी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा था 2 दिनों तक ZEE5 और ऑल्ट बालाजी में. कितने एक्साइटमेंट है उसके लिए आप? वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले नहीं किया है. पहली बार ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले करने को मिला. ऑडियंस के लिए भी एक सरप्राइज है. होपफुली लोगों को पसंद आएगा तो हम उस कैरेक्टर को वापस से आपके सामने लेके आ पाएंगे. Thank you guys. थैंक यू. Thank you. बाय. Guys, पहले चंदा कर लें. किशन अभी कुछ और? अच्छा ओके मैम, सबसे पहले आज का जो अवार्ड शो है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और कौन सी कैटेगरी में आपको आज अवार्ड मिला? वो तो मैं आई थिंक जाने के टाइम में आपसे कहूँगी, बिकॉज इट वॉज क्वाइट अ शॉक टू मी. इट वॉज क्वाइट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है वो अवार्ड मिलकर. ये मेरा पहला अवार्ड होगा, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बेसिकली सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोविड में एक अवार्ड फंक्शन हो रहा है और जिसके लिए मैं आई हूँ, सो आई थिंक आई एम एक्साइटेड एक्चुअली फॉर दैट टू. सो या आपके लिए 2020 कैसा रहा और क्या सीखा आपने 2020 से? बहुत ज़्यादा, बहुत चीज़ें सीखी. आई थिंक सबसे छोटी चीज़, जब अब 2 महीने पहले मैं दुबई गई थी और उस वक्त इट वाज अमेजिंग जिस तरह से मैंने एक सैंडविच खाया था एक रेस्टोरेंट में, और मुझे कभी उसकी अहमियत इतनी महसूस नहीं हुई. यू नो, आप कहीं भी जाते सैंडविच खाते, कॉफ़ी पीते, बट आई थिंक इस साल एक छोटा सा कप ऑफ कॉफ़ी, एक छोटा सा सैंडविच, सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट एंड ईटिंग, that importance was amazing. So that was something which is छोटी बातें, you know, like अगर मुझे पानी पूरी खाना था क्योंकि सारे घर पे थे और पानी का पूरी नहीं मिल रहा था,
और इनको फ़ोन करो, उनको फ़ोन करो, इस किराने आई मीन मुझे मेरे एरिया के किराने वाले भी नहीं पता थे. तो आई थिंक कोविड हैज़ टॉट मी just the basic necessities, and I think that is what is the realization कि genuinely, I mean मम्मी डैडी हमेशा कहते हैं ना छोटी छोटी बातों पर you should think about, but this year has taught me that small things. कसौटी ने इतना अच्छा किया और अभी भी लोग कसौटी को मिस करते, तो उसको कितनी बड़ी उपलब्धि मानती है आप? कसौटी को लोग मिस करते हैं, थैंक यू, लेकिन कसौटी को मैं भी मिस करती हूँ. इसीलिए आई थिंक मंथ और वीक हम वीडियो कॉल्स करते हैं, हम मिलते हैं. प्रॉब्लम यही होता है कि हम सब इधर ट्रैवल कर रहे हैं या शूट कर रहे हैं, तो फिर टाइमिंग्स इतना मैच नहीं होता, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि सारे मिले. आई होप इस ईयर के पहले हम सारे मिलें, तो इतना मिसिंग नहीं होगा फिर. मैम बिग बॉस 14 भी चल रहा है, कितना फॉलो कर पा रही है, कौन है फेवरेट? आई एम वेरी सॉरी, आई एम नॉट फॉलोइंग बिग बॉस. मैं सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि नैना थी और वो भी तब मैं दुबई में थी, तो आई कुडंट वॉच इट. जब मैं वापस आई और पता चला कि वो घर के बाहर है, तब मैंने उसके एपिसोड्स देखे. बट नहीं यार, सॉरी, मैं बिग बॉस नहीं देखती. 2021 के क्या प्लान्स है, क्या रेजोल्यूशन बनाए हैं? क्योंकि 2020 तो ऑलमोस्ट सब बंद ही था, लेकिन 2021 में क्या प्लान्स है आपके? मैं कभी प्लान नहीं करती, जैसे होता है वैसे ही मैं यू नो आई टेक इट विद द फ्लो, एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस बिकॉज आई एम अ हैप्पियर पर्सन लाइक दिस. क्योंकि क्या होता है कि अगर आप प्लान करते हो और उसके मुताबिक नहीं जाता, then you get upset, and I don't like to get upset. So I don't like to expect from anyone. I don't want to get upset. So I'm not planning anything. जैसे आएगा, हाँ, hopes है, wishes है कि एक और अच्छी सी प्रोजेक्ट आ जाए, something more interesting, you know. तो वो hope है, wish है, प्लान कुछ नहीं. कोई रेजोल्यूशन बनाया है 2021? मैंने जितनी भी बार रेजोल्यूशंस बनाए हैं वो कभी पूरी नहीं हुई है. तो कॉलेज के टाइम से मैंने बंद कर दिया था रेजोल्यूशंस करना. थैंक यू, स्टे सेफ, थैंक यू. I'd love to thank International Iconic Award a lot because I think it really means a lot कि hair and makeup को भी recognition मिलता है. I think I have won a lot of awards, especially at I for Robots, which the whole world knows. So I've won all the awards right from IFA, Screen, Stardust, the award. But I think this is really a nice award, especially it happened during the COVID time. So I think this is really a blessing. So a big thank you to all my followers, my well-wishers, my Bollywood actresses, my co-stars, even Shubhavi. In fact, I worked with Shubhavi for her Sunsilk commercial for the first time. So I think right from Urmila ka Rangila se leke, I think Aishwarya ka har ek picture I've worked with on hair and makeup, and I think I'm the only makeup artist of India who does hair and makeup both. So truly grateful and thankful to everybody, and you know, have lots of gratitude, and it's really nice. So I'd love to say thanks to Mommy Bhai for having such a lovely platform to recognize people. Yeah, thank you. Thank you, but I'm not the nominee. I'm presenting the award. So maybe next year I'll be the nominee for sure. Definitely प्रोत्साहन तो मिलता ही है. It's a I'm really honored कि मुझे present करने के लिए बुलाया गया है, and this is my first International Iconic Awards, so I'm very excited. Actually, this is I bought it from Dubai, so it is international. So I thought this is the right time to wear it. Yeah, I am doing Kyun Rishton Mein Katti Batti on CTV. I'm playing Samira in that. So next time I might be nominated in Best Winning category. Not yet actually. After the lockdown happened, this is the one project I'm doing, and I'm like 28 days I'm busy in that project only, so I don't get any other time. So maybe in 2021. Thank you everyone. She is a hardcore icon. Can you finish me, then I can go? थोड़ा लाइट लेके थोड़ा सा लाइट दे दीजिए बस. I'm going to give her lots of love. Thank you so much and all the best to you. Miss Aishu wants to
Thank you so much. First of all, it's my first award function, and I got the Best Actor of Indian Television 2020. It's a big deal for me. It was my first show, and it's my first award, so it's gonna be very special for me forever. आफ्टर कोविड आप इनको जो फर्स्ट अवार्ड भी दिया जा रहा था काफी प्राइसेस कैसा रहा मतलब कुछ बताना चाहिए शेयर करना चाहिए Yeah, like I was expecting after Shubharam, like during Shubharam, कि बहुत सारे award functions होंगे, but Corona happened and nothing happened after that, and Corona में बहुत चीजें हो गई, show भी चला गया अब तो, so first of all I'll be thanking my mom and dad for supporting me always. Then I'll be thanking Rupesh for getting me this show. That's why I got this award, and then Shashi Sumit Productions and Colors Channel. A big thanks to them. My life totally changed after Shubharam, and that's why I'm here tonight. कोविड के कारण आपका शो बंद हुआ लेकिन लॉट ऑफ पीपल लव यू Yeah. कुछ अपने फैंस के लिए क्या कहना Yeah, COVID की वजह से कहीं ना कहीं show off air गया, and then Corona happened to me. That's why also. But people still loves me, loves our show. Like I went to Punjab, I went to Delhi, I went to Bangalore in last month. People recognized me in Karnataka also. Like कहाँ पे कन्नड़ा चलती है, but still people were like yeah, I know Raja. They like know our show through Raja Rani only. Shubharam उनको शायद नहीं पता, but उनको Raja Rani पता है. So it was lovely seeing people still recognizing me, and as I said, it changed my life. Any upcoming project? As of now, I'm just exploring myself as an actor into web, movies, and TV also. But don't worry, I'll be back on TV screens very soon. And are you watching Big Boss show? Everybody wants to know about Big Boss. No, I'm not watching Big Boss this time, but I was watching last time. This time, not so much. Thank you so much. हाँ मुझे बुलाया सॉरी यार मिल रहा है आर यू श्योर अगर नहीं मिला ना थैंक यू अच्छा चलिए आपको नॉमिनेट भी किया गया और अवार्ड मिलने वाला ही 100 तो कितना एक्साइटेड है आप एक्साइटमेंट है अवार्ड मिलने थैंक्स टू यू अनाउंस करने के लिए कि मुझे अवार्ड मिल रहा है मैं बहुत खुश हूँ मैंने सोचा कि साल ख़त्म होने से पहले बेस्ट दाव खेला जाए तो इसलिए मैं सबसे बेस्ट कार्ड जो है वो पहन के आया हूँ कैन यू सी क्वीन किंग एस जो कसिनो में जो कार्ड्स के सबसे बेस्ट पत्ते होते हैं वो पहन के आया हुआ है सो सफल हो गया बेस्ट दाव खेला और आपने बताया कि मैं अवार्ड जीत रहा हूँ सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यूअर्स हैं जो फैंस हैं जो ऑडियंसेस हैं वो मेरी स्ट्रेंथ है अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो वो उनकी वजह से अगर उन लोगों को मेरा रोल या मेरा काम पसंद नहीं आया होता तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं खड़ा होता सो जो भी रिसेंटली मैंने अवार्ड्स जीते हैं और अगर आज भी जीत रहा हूँ तो वो उन्हीं की वजह से है थैंक यू सो मच गाइस यू गाइस आर माय स्ट्रेंथ ओके सर पैंडेमिक के बाद अगर हम बात करें कई सारे शो बंद हुए टीआरपी कम हुई लेकिन आपके शो की टीआरपी तो ऊपर ही ऊपर गॉड इज ग्रेट क्या करते हैं आप लोग मतलब इतना लव आपको देखिए सबसे पहला क्रेडिट जाता है हमारी प्रोड्यूसर एकता मैम बालाजी टेलीफिल्म्स जो क्रिएटिव टीम है जो राइटर है अनिल सर क्योंकि अगर राइटिंग में दम ना होना तो हम एक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते तो ये पूरा टीम एफर्ट है जो भी हम करते हैं वो पूरा टीम एफर्ट है सो
द क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम एंड सबसे पहला क्रेडिट जाता है व्यूअर्स को। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितने भी एफर्ट डाल दे, अगर वो देखेंगे नहीं हमें तो शो अच्छा नहीं कर पाएगा। आपकी बात सही है, बहुत सारे शोज यू नो आए ऑफर हुए, आई फील रियली सैड क्योंकि इससे पहले मैंने जो 4-5 शोज किए कोई भी शो 3-4 महीने से ज़्यादा चला ही नहीं है। सो आई नो हाउ इट फील्स। सो मैं तो यही कहता हूँ कि आई एम थैंकफुल टू गॉड, टू द ऑलमाइटी एंड टू द फैंस कि आई you know I have been given a chance to prove my talent and my craft in such a big show on Indian television. Any planning web series Alt Balaji हर रोज नए वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं, कई सारे सेलिब्रिटीज तुम्हारा ट्राई कर रहे हैं, हाल ही में बेपाक भी काफी हुआ है। हाँ जी, देखिए मैं एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहा हूँ जहाँ पे जब उन्हें लगेगा कि संजय को कुंडली भाग्य से उठा के यहाँ पे प्लांट किया जाए इस वेब सीरीज में, वो अपने आप हो जाएगा। मुझे खुद पता नहीं चलेगा, मुझे सिर्फ बताया जाएगा कि कल सुबह आपको इस सेट पे पहुँचना है। सो जो ट्रस्ट एकता मैम ने और बालाजी टेलीफिल्म से मुझ में दिखाया है इतने सालों से, एज एन एक्टर मेरा भी वही ट्रस्ट है। मैं जानता हूँ कि वो मेरे लिए जो भी करेंगे वो हमारे फेवर में ही होगा, हमारे। एक बात कहा जाती है कि जो ऑल्ट बालाजी की फैमिली में आ जाता है, मतलब एकता कपूर फैमिली में आ जाता है, वो फाइनेंशियली और साथ ही साथ उसको कहीं ना कहीं फिट ही हो जाता है। एक शो बंद हुआ दूसरी जगह कहीं ना कहीं काम ही मिल जाता है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहता। ये बात क्या सही है? इट टोटली डिपेंड्स कि नंबर 1 आपका काम कैसा है, आपका क्राफ्ट कैसा है, आप टैलेंटेड हो या नहीं। नंबर 2 आपका बिहेवियर कैसा है। एज दे से to be a good actor you have to be a good human being. So as a human being अगर आप अच्छे हो, आप टाइम पे सेट पे पहुंचते हो, 100% 1000% अपना देते हो, ऑडियंसेस को एंटरटेन करते हो, शो के लिए फ़ायदेमंद हो एंड प्रोडक्शन का टाइम वेस्ट नहीं करते हो, आपके अंदर किसी तरह के टेंट्रम्स नहीं है, यू आर ईजी टू वर्क विथ, यू आर स्वीट विथ द एंटायर यूनिट, आप सब लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, राइट फ्रॉम द स्पॉट टू द डायरेक्टर, सारे डिपार्टमेंट्स की। तो ऑब्वियसली ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली इस बार मैं नहीं देख पाया इस बार। थैंक यू। Thank you, धन्यवाद। Thank you very much. Thank you. दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड, अब इंटरनेशनल आइकन अवार्ड, आपको भी सर Thank you very much. Thank you very much. आपके शो के के लेके आपको अवार्ड मिलता जा रहा है। नहीं, बहुत खुशी की बात है, खासकर ऐसे टाइम में जबकि हम कोरोना वायरस के संकट से पिछले 1 साल से जूझ रहे हैं। ऐसे में जब हाथी की पूंछ रह गई है तो ये पूंछ जो है बहुत अच्छे से, मतलब काफी पूछ के गई है। हाँ, काफी और अच्छे से गुजर जाए और 2021 जो है फिर से एक होप, एक उमंग के साथ हमारा गुजरे, बस यही इल्तिजा ऊपर वाले से है। बस यही कहना चाहेंगे कि 2020 को हम कभी याद ना करें, क्योंकि बड़ा अजीब सा दौर पूरी दुनिया के लिए रहा है। पर 2021 एक हर्षोल्लास, एक मंगलमय तरीके से शुरुआत हो और सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और किसी भी तरीके की कोई फिक्र ना रहे कि मुंह पे मास्क लगाना है, कि छूना नहीं है, कि मिलना नहीं है। लोगों की दूरियां घटे, लोग वैसे ही, लोग जिस तरीके से जी रहे थे वैसे जिए, सामान्य तरीके से जिंदगी गुजरनी चाहिए, जीना इसी का नाम है। ओके सर, बिग बॉस कितना देख रहे हैं आप लोग? बिग बॉस में बहुत ज्यादा फॉलो कभी भी नहीं करता, इस बार भी मैं बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ। बस सेम हियर, बस वही है। नहीं, रीजन कुछ नहीं है। रीजन यही है कि दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं यार, देखने। आप लोग कभी जाना पसंद करेंगे बिग बॉस में? यार ये सवाल ना करो, ये ना सवाल करे तो अच्छा, ये सवाल बात है, क्योंकि
वक्त का कुछ नहीं पता, क्या पता हमें कोई अब देख रहे हैं कोरोना आ गया अचानक, कुछ पता था? कुछ पता था, लगा था कि मुंह पर मास्क लगाएंगे, इसलिए इस तरीके की कोई सवाल नहीं। 16 मार्च को हम जो है पहाड़ों पर घूमने की सोच रहे थे, 17 मार्च को प्रभु ने घर में कैद कर लिया, तो कल का कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। You were here? Hello, ma'am. How are you? I saw your camera, but the flash light I could see the face, but then you're busy. How are you, ma'am? Done with the visual? Peace. His name is Kishan. He said kitchen. मैम Thanks. कांग्रेचुलेशन, आपको आज अवार्ड मिलने जा रहा है, इंटरनेशनल आइकन अवार्ड। Thank आप ऑलरेडी सबके लिए आइकन हैं। Am I? Thank you. तो कुछ बताना चाहिए मैम, इस तरह का अवार्ड मिलना कितना एक्साइटमेंट होता है? Actually, the best part is कि 2020 ऐसे खत्म हो रहा है, तो that is the best part कि it has been a very different year for everybody, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है 2020 में और it's getting over like this, it feels nice. ओके, कितना मुश्किल भरा था आपके लिए कोविड पैंडेमिक, किस तरह से आप लोगों ने शूट भी किया? शूट में शूट तो बहुत अलग तरीके से हुआ है। हमने शुरुआत जब की कसौटी की, तब हमने कुछ अलग तरीके से शुरुआत की, क्योंकि जब मैं शूट करके हावड़ा ब्रिज पे, तो मैंने कान में एक वो वायरलेस हेडफोन पहना था और कहीं दूर से मेरे डायरेक्टर मुझे डायरेक्शंस दे रहे थे, और कोरोना के टाइम पे हम लोग जूम मीटिंग पे शूट कर रहे थे, जहाँ पे सब लोग लिटरली स्टूडियो में बैठे और मैं घर पे हूँ और मैं शूट करके उनको सब फुटेज दे रही थी। सो इट वाज वेरी डिफरेंट। और कसौटी में लिटरली हमने सब कुछ क्या एक्सपेरिमेंट भी कर लिया और नो एक्सपीरियंस कर लिया। ओके, आउटफिट के बारे में जानना चाहिए, काफी बहुत ही सुंदर है, ब्लैक। यू लाइक इट? आई लव ब्लैक, इसलिए मैंने ब्लैक ही चूज किया। ओके, सॉन्ग तो काफी धमाल मचा दिया आपका। आपको पसंद आया? अरे पसंद आया, हर्षद सर के साथ आपने काम किया, काफी अनोखा सॉन्ग था। कुछ बताना चाहिए, कब शूट किया आपने ये? हमने शूट किया था शायद अक्टूबर या नवंबर में, मुझे याद नहीं है। फैंस को पूछना, उनके पास सारे डिटेल्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन, सारे डेट्स, टाइमिंग सब होते हैं। काफी मिलियंस ऑफ व्यूज ज्यादा गए, मतलब बहुत बड़ी बात है। Actually, the best part is कि बिना promotions किए we've touched that milestone, so it's really nice. How was the experience? It was good. It was very chill. और हर्षद is like a buddy, तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम शूट करते हैं। हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे शूट के टाइम पे। Any upcoming project? नहीं बता रही। थोड़ा सा बता रही है। थोड़ा सा आई थिंक ऑलरेडी रिवील हो चुका है अंदर, बट जब होगा कुछ तो मैं खुद ही बता दूंगी। Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. The reason you got them here, right? You just got it for one bite. No. Congratulations. Thank you. किया गया है आज। Right. कुछ बताना चाहिए, इंटरनेशनल आइकन है आप पूरे। मेरे ख्याल से बेस्ट एक्टर में नॉमिनेशन है मेरा, और एक अच्छी बात है कि आपका जो भी आप जो काम करते हैं उसमें अगर आप नॉमिनेट होते हैं तो आई गेस लोगों का प्यार है, ज्यूरी का प्यार है, या जो भी आप चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी उसके लिए अप्रिसिएशन आपकी होती है, तो चाहे अवार्ड हो या ना हो, एक इट्स अ गुड फीलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ व्हाट यू डू, एंड जो आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं अगर अप्रिसिएशन मिले तो क्यों नहीं, किसको बुरा लगता है। ओके,
कोविड काफी लोगों के लिए जी बुरा था। जी आपने कैसे गुजारी ये समय, क्या क्या सीखा आपने कोविड पैंडेमिक में? कोविड पैंडेमिक में एक्चुअली बहुत कुछ सीखा, पेशेंस सीखी, घर के बर्तन धोने सीखे, बहुत सारे घर के काम सीखे। मुझे कुछ चोट लग गई थी तो मैं कुछ आराम भी कर रहा था, तो वो भी सब देखा। तो आई गेस बहुत एक लंबी जर्नी रही मेरे लिए, हम सब के लिए। एक मुश्किल टाइम भी था, हम काम नहीं कर रहे थे, एक नई हैबिट थी जो कभी हमने ऐसा लाइफस्टाइल कभी देखा ही नहीं था, वो हमने देखा है। सो एंड लकीली अब हम थोड़े थोड़े बाहर निकल रहे हैं, वैक्सीन आ रही है। आई जस्ट वांट टू से कि जिन लोगों ने भी हेल्प की है, स्पेशली ऑल द हेल्थ केयर वर्कर्स, उन्होंने बहुत मेहनत करी है और उन्होंने हमें सपोर्ट किया तो हम आज यहाँ पे पहुँच पाए। सो दैट्स इट। आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट इट्स गेटिंग ओवर नाउ। हाँ, मेरी चोट अभी बेटर है, मेरे हाथ पे चोट लगी थी, इट्स क्वाइट बेटर। और काफी आजकल आप सॉन्ग कर रहे हैं, जी जी जी, सेंसेशनल बनते जा रहे हैं, आप टेलीविजन से आप सेंसेशनल होते जा रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट सेंसेशनल कैसे होते जा रहे हैं। मतलब काफी आपके फैंस पसंद कर रहे हैं आपको, वो चाहते हैं आप फिल्म में भी आए। फिल्म में भी हमारी फिल्म आई, मैंने फिल्म करी थी, हॉटस्टार पे आई थी, रिलीज हुई थी वो मार्च में, बट ड्यू टू पेंडेमिक वो स्क्रीन पे रिलीज नहीं हो पाई, OTT पे रिलीज हुई थी। क्या है मतलब यार, हम तो काम करते हैं अपना, कुछ काम अच्छा लगता है ऑडियंस को। हाँ, सॉन्ग काफ़ी हिट हुए, उसके लिए थैंक यू सो मच। सब ऑडियंस ने, फैंस ने, आप सब ने बहुत प्यार दिया, तो अच्छा चल रहे हैं सॉन्ग। और भी कुछ नए सॉन्ग्स आने वाले हैं, और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं 2021 में। सो यस, वेटिंग फॉर दैट। किसके साथ? अरे कुछ सरप्राइज भी रहने दो 2021 के लिए, सब आज ही बता दें। ओके, नए साल के लिए शुभकामनाएं दे दीजिए। नए साल के लिए सबको सबसे पहले मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सबका साल बहुत अच्छा जाए। जो पिछले साल गलतियां करी थी जिसकी वजह से कोरोना आया, वो मत करना। एंड आई होप सबका साल ये वाला बहुत अच्छा जाएगा। और अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। एंड विश मी लक। मेरा नॉमिनेशन है, देखता हूँ क्या होता है। जीतने वाले हैं, चलो फिर बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, मुझे किसी की शक्ल नहीं दिख रही। हेलो। ओके सर, कांग्रेचुलेशन, नया लुक आपने किया है आफ्टर लॉन्ग बैक। आपके फैंस आपको पहचान नहीं पाएंगे। मैं हैरान हूँ कि आप लोगों ने मुझे पहचान लिया मेरे बालों के साथ। थैंक यू सो मच। तो तेनालीरामा अभी एंड हुआ है लास्ट मंथ में, और ये मेरा पहला अवार्ड है तेनालीरामा के लिए। एंड आई एम रियली हैप्पी। 2020 हम सबके साथ कैसा बीता हम सबको पता है, बट दिस इज एंडिंग ऑन अ वेरी हैप्पी नोट। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ कि ये अवार्ड फाइनली मुझे मिला है। मैंने ये सीखा कि हमें अपने साथ और हमारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो जब लॉकडाउन हुआ था पहला, तो मैं अपनी फैमिली के पास नहीं जा पाया था, बिकॉज सबको पता था कि हम लोगों को दूर रहना ज़रूरी है, मेंटेन रखना ज़रूरी है डिस्टेंस। तो उसके बाद मैंने मेक श्योर किया कि मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करूं, और वो मैंने किया। अभी मैंने शो खत्म होने के बाद ट्रैवल करना भी शुरू किया है। मैं ट्रैवलिंग बहुत मिस कर रहा था, कहीं घुमा फिरा नहीं था। अभी आई एम ओनली ट्रैवलिंग नाउ एंड एंजॉयिंग माई सेल्फ। आपको मेरी खुशी दिख रही होगी मेरी स्माइल पे कि मैं कितना खुश हूँ। नहीं, बट मैं अब एक्चुअली तेनालीरामा मिस कर रहा हूँ, बिकॉज वो शेविंग रोज होती थी मेरी, एंड जो चार्म था उसका अलग ही चार्म था। बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक टू माई रियल सेल्फ, जहाँ मेरे बाल आ रहे हैं वापस, और बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ मेरे जल्दी से आप लोगों जितने लंबे बाल आ जाएं मेरे फिर से। तो मेरा माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज इन फरवरी, जिसके लिए मुझे फुल ग्रोन हेयर की जरूरत पड़ेगी। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। घर वाले तो देख चुके हैं हमेशा, बट फैंस लोगों को हमेशा उनको नया, क्योंकि फैंस तेनालीरामा के बाद बने थे, फॉलोअर्स और फैंस, उनको वो टकला रामा ही पसंद आता था हमेशा। तो सडनली ये बाल आ गए हैं तो उनको नया लुक देखने में बड़ा मजा आ रहा है। उनकी डिमांड्स बढ़ गई हैं कि ऐसे पिक्चर्स आप क्लिक करिए, आप ऐसे वीडियोस बनाइए। तो दे आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड विथ माई न्यू लुक।
My upcoming project will be the Gujarati film sequel that I did in 2017 called चलमन जीतवा जाइए. तो उसका second part अब हम finally shoot करेंगे. वो film release होने वाली थी 2018 में, but because of तेनाली रामा and my bald look हम वो shoot नहीं कर पाए. अब finally हम February में shoot करेंगे. I have got some offers for Z5 but nothing is confirmed yet. अगर सब कुछ रहा, look मेरा perfect रहा तो मैं I'll take that project. Thank you so much. Thank you. थैंक यू कहना चाहूँगी और अच्छी फीलिंग है. हालांकि ये जो वॉज है 2019 के हिसाब से है, थोड़ा सा फ़नी और वियर्ड भी लग रहा है बिकॉज आई वन बेस्ट खलनायिका अवार्ड. तो वो पिछले शो में था जिसको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, बट हाँ कोरोना ने चीज़ों को बड़ा डिले किया है. तो अब जाके जब अवार्ड शो हुआ है तो अब जाके वो एक अवार्ड मिला है. बट आई थिंक इट्स अ हैप्पी फीलिंग क्योंकि बहुत सारे फैंस से मिलकर वोट भी किए हैं. तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल द फैंस हु वोटेड फॉर मी. आपके लिए अवार्ड मिलना कितना इम्पोर्टेंट है या फैंस का प्यार? फैंस का प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि फैंस का प्यार जब इतना होता है तो अवार्ड्स एक्चुअली वो मिल ही जाते हैं और वो आपकी काबिलियत पर भी मिलते हैं. बट ये जो अवार्ड शो था फैंस से वोट किया है तो आई थिंक इट्स स्पेशल. कोविड पैंडेमिक काफी परेशानी का समय रहा लोगों के लिए. आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या आपके लिए परेशानियाँ मैं ये कह सकती हूँ कि मैं काफ़ी अलर्ट थी पैंडमिक के टाइम पे. मतलब ऐसा होता है कि कभी आप अगर अकेले रह रहे हैं 2 महीने 3 महीने तो वो चीज़ शायद आपको हावी कर सकती है, आप थोड़े से लो फील करने लग सकते हो. बट आई वॉज कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट यार बीच में ऐसे दिन आते हैं थोड़े लो डेज, बट यू हैव टू कीप अप विथ इट एंड यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग. तो मैंने हमेशा ये किया है, आई वुड ऑलवेज इंडल्ज माई सेल्फ इन थिंग्स जो मुझे अच्छी लगती है करनी. एंड यार बाकी तो हम सबको पता है कि लॉकडाउन और कोविड हमें कितना कुछ सिखाता है. आपके आउटफिट के बारे में थोड़ा जानना चाहूँ. काफी ब्यूटीफुल. थैंक यू. थोड़ा कुछ बताना चाहिए कितना समय लगा आपको? समय ज़्यादा नहीं लगा है. मैं शूट से आई हूँ तो नॉर्मली जैसे लड़कियों को लगता है आधा पौना घंटा 1 घंटा उतना ही लेकर आई हूँ मैं. मतलब यार उतना तो बहुत बेसिक है. अगर मुझे मेकअप करना है, हेयर बनाने हैं वैसे तो थोड़ा सा उतना टाइम तो लग ही जाएगा. बट यहाँ पर आ जाओ मैं दिखाने. थोड़ा घूमकर दिखाइए. रैम्प वॉक नहीं, मैं यहाँ पर आ रही हूँ. यहाँ पे हम रैम्प वॉक नहीं कर रहे. मैम काफी आपका शो है बहुत ही सुर्खियों में है. सोशल मीडिया पर काफी बात होती है, आपके किरदार के बारे में बात होती है. जो अगर कोई बोल भी डालता है कुछ, अगर क्रिटिसाइज करे तो उसकी ट्रोलिंग हो जाती है. फैंस लोग क्या कहना चाहिए? आपका शो काफी चर्चित है, पॉपुलर है. थैंक यू कहना चाहूँगी सारे व्यूअर्स को और फैंस को बिकॉज उन्होंने बहुत प्यार दिया है हमारे शो को और अभी भी दे रहे हैं और इतना सपोर्ट दे रहे हैं. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग जब आप मेहनत करते हैं और आपको इतनी अप्रिसिएशन मिलती है. जब आपको ये शो मिला था तो शायद कोविड स्टार्ट ही हुआ था और वो शो शूट भी नहीं हुआ, तो आपको लगा था कि क्या क्या आप मतलब आपको था रिएक्शन? मतलब शो नहीं हुआ, पैंडेमिक आ गया बीच में. नहीं ऐसा कुछ नहीं था. हम सब काफ़ी पॉजिटिव थे और हमें लगा कि ये तो एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि कोविड से पहले शो लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं था बिकॉज लॉकडाउन आ गया और हम सबको पता नहीं था कि कितने महीने या कितने दिन चलेगा. सो आई थिंक इट वाज अ वाइज डिसीजन
जो पूरी टीम ने और सब ने मिलकर जो लिया गया था कि लॉकडाउन के बाद शो को प्रॉपरली अच्छे से लॉन्च करेंगे एंड आई थिंक आज वाज द फर्स्ट शो जो कोविड के बाद नया लॉन्च हुआ था। इतना प्यार आपको मिल रहा है शो के लिए, क्या कहना चाहिए? मतलब आपके फैंस इतने प्यार कर रहे हैं शो को, टीआरपी भी सोशल मीडिया में काफी हाई है आपसे। थैंक यू कहना चाहूँगी एंड एक्चुअली सिर्फ मैं नहीं, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से अब सबका बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी फॉर ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट, क्योंकि सिर्फ अकेले एक्टर्स नहीं होते हैं, पूरी टीम जुड़ी होती है जो इस अप्रिसिएशन की हकदार होती है। वीलॉग भी आजकल आप बनाना शुरू किया है, थोड़ा सा कुछ अगर आप बताएं तो कितना आप बना रहे हैं वीलॉग, थोड़ा बताइए मैम। जाइए ऐसा मत, अरे आप बहुत सवाल कर, आप कितने सवाल। वीलॉग रुकिए ना, वीलॉग का बताइए। जी 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 हाँ, वीलॉग के बारे में बताइए, वीलॉग आप बना रहे हैं कुछ नई चीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, फैन से कनेक्ट होने की एंड आई थिंक आई नो दैट दे वुड लाइक टू वॉच यू नो द बिहाइंड द सीन्स एंड प्रॉबेबली द प्रोसेस जो हम शूट के दौरान होता है। सो या दैट्स समथिंग न्यू जो थैंक यू। नीलोफर जी हटिए आप। मामू तो खाली विजुअल मार रहे, कुछ किए ही नहीं। गलत न्यू ईयर पे मैं Thank you. My mom. Yeah. Each time I गर्मी हो गई है, हाँ चलो हो गया। चलो बन के गए। ये ग्रीन वाले हम भी थे नहीं है। अरे हाँ हाँ ठीक है चलेगा चलेगा। किचन इतना तुम मेरे हाथ में फंसा दे गिव द फोन एंड मास्क। हम जरा अरे वहाँ मत कौन है वहाँ मत पीछा का ना किचन किचन एक सेकंड फोटो तो लेने दो मुझे। बाइक में हो रहा है मैम के लिए वहाँ पर है ना। Jasmine. Yeah, I'm really liking Jasmine. How she's going ahead. Rahul is doing very well. So yes, I would wish both of them. Rubina is also playing very well. All the contestants are playing very well. You know, it's not about who versus who. It's about we are getting to see everyone doing their best, everyone giving their best, and that is what is important. It's not about Rubina versus Jasmine or Jasmine versus. It's just a wonderful game. What they are playing is wonderful. That's all. Okay, Rakhi Sawant also there inside. She's entertaining. Very entertaining. She's very innocent. I don't know. लोगों को क्या लगता है, बट मुझे तो बहुत इनोसेंट लगती हैं और वो बहुत जिस तरह से वो अपने आप को मतलब बिना किसी ऐसे किसी फेस के वो लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, वो बहुत इनोसेंट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनको देखता हूँ, बहुत एंटरटेनिंग है वो। ओके सर, न्यू शो भी आपका है, कितना मतलब एक्साइटमेंट थे आप शो आपको मिला ये नया शो? इसमें ना एक्साइटमेंट होने वाली कोई बात है ही नहीं। इतनी मज़ेदार बात है कि एक ऐसा कैरेक्टर आपको करने के लिए मिला जो आप हमेशा से ढूंढ रहे होते। हर कैरेक्टर, हर एक्टर ये चाहता है कि उसको अपनी एक करियर के अंदर एक ऐसा एक कैरेक्टर मिले जो उसको चैलेंज करे, जो लोगों को पसंद आए, जिससे वो ये बोल पाए कि यार हाँ ये मैं कर सकता हूँ। मेरा ये ड्रीम था एक ऐसा कैरेक्टर करना, जिसके लिए मैंने सालों साल अपने आप को भी ट्रेन किया। वेरी हैप्पी। बालाजी इज बैकिंग इट अप, एकता मैम इज बैकिंग इट अप,
Wonderful channel, wonderful story, wonderful co-actors. Really excited. Looking forward to entertain you guys. सर कैसे मैनेज करते हैं 2 शो को मतलब आप? मैनेज प्रोडक्शन कर रहा है, मैं तो काम कर रहा हूँ. ओके और ये दंगल में है तो काफी इसकी जो पॉपुलैरिटी है चैनल की काफी हाई है, जी से भी ज्यादा है क्योंकि रूरल एरिया में ज्यादा देखा जाता है चैनल को. तो कितने एक्साइटमेंट है गाँव तक आप पहुँच रहे हैं? मैं जरा गाँव जाने वाला हूँ, इधर देखता हूँ. गाँव वालों को पूछता हूँ कैसा लगा आपको. मैं क्या करूँगा एक्साइटमेंट होकर स्टूडियो में. मैं जाके जब लोगों को मिलूंगा तब पता चलेगा ना कि कितने एक्साइटेड है. थैंक यू. पैंडेमिक के बाद काफ़ी एक्साइटमेंट है because this year has surely been a tough one, but I guess now that it's ending on a good note, so I would say कि अन भला तो सब भला. And I remember कि in Jan I won an award, and now that the year is ending in December I'm winning another one, so I guess that's a great thing. ओके कोविड के बाद आपने गाने भी शुरू किए, गाने भी आए आपके काफी पॉपुलर हुआ. क्या कहना चाहिए सॉन्ग के बारे में, आपके बारे में? फैंस से काफी अच्छा रिएक्शन मिला आपके फैंस से. जी I guess I've always been very thankful कि whatever I do, be it my shows or be it my music albums or short-term projects, they've always showered immense love on me, and I'm really grateful for all the love and all the support they've been showering on all my music albums also, especially this year. ओके आपके आउटफिट के बारे में जानना चाहूँगा, कितना समय लगा और आउटफिट के बारे में थोड़ा बताइए. समय तो लगा यार थोड़ा सा, देखो लड़कियां हैं तो रेडी होने में टाइम तो लगता ही है. But yes, I am wearing this gown because it's winter, तो winter से related एक gown है. And I'm wearing Maya Culture, and my jewelry is by House of Roro. I've been styled by the Auntie designer. ये थोड़ा winter look को ध्यान में रखते हुए, and with this one minimal highlight jewelry of this ear cuff. इधर. Okay. So yeah, so that's my look for the day. थोड़ा winter gown feels, and with this one minimal highlight jewelry with this ear cuff, and that's my look. सॉन्ग को काफी प्यार मिला, तो आने वाले दिनों में कोई नया सॉन्ग, कुछ बातें चल रही है नए सॉन्ग? जी बिल्कुल, कल रिलीज हो रहा है अखियाँ तड़पेंगी with Mohit, and I guess all the Patiala Babes fans will know, all the Minika Miki fans will know we're coming back together after the show, and it's going to release on Zee Music tomorrow, so I hope you guys like it. Any upcoming apart from this television, are you doing or web series? This year I'm not taking up any long-term projects, as I have mentioned in my previous interviews, because I have my 12 boats, and I know the amount of pressure you have when you're tackling both the things together. We all know how time-consuming daily soaps are, and मैंने experience किया हुआ जब 10th में मैं 10th के boards और पटियाला वेब साथ में कर रही थी. So once my boards are over, then I would be able to take up long-term projects. Till then, I'm gonna take up these short projects only, as I've been doing till now in this year. And if there's anything, I'll let you guys know. I'll keep you guys updated. नए साल की शुभकामनाएं. Very happy New Year to everyone, and celebrate it safely. अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खूब इंजॉय कीजिए, प्रिकॉशंस को साथ में ध्यान में रखते हुए. And let's hope that the new year brings new hopes, new aspirations, and makes Corona go away. All right, thank you. Yes, I know. आप लोगों को congratulations. अवार्ड भी दिखा दीजिए पहला, इंटरनेशनल आइकन. अच्छा. Okay, so we have got this award, most versatile actor and most versatile actress. And I think well deserved. अच्छा, अपने आप ही. कितना एक्साइटमेंट होता है जिस तरह से अवार्ड मिलता है, प्यार मिलता है, दर्शकों से काफी प्यार मिलता है, अवार्ड मिलना. I think बहुत अच्छा लगता है एक एक्टर के लिए. जो हम काम करते हैं, जो हमारा पैशन है एक्टिंग, उसमें पैसे वैसे मैटर नहीं करते, तालियां मैटर करते हैं. तो ये अवार्ड एक तरह की अपलॉज है, एक तारीफ है, एक हमारे काम की सराहना है. तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह अप्रिसिएशन मिलती है. What do you think? यार बट पैसे भी मैटर करते हैं, और Honesty is the best policy for this world. हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स तालियां, क्योंकि हम तो अगर चूज करना पड़े तो तालियां या पैसे, व्हाट वुड यू चूज? दोनों चाहिए मुझे. नहीं, अगर एक चुनना पड़े तो फिर पैसे.
मेरे लिए तालियां। ठीक है, इसके लिए तालियां बजाओ, ठीक है, चलेगा मुझे। तो हाँ, तो हम छोटे शहरों से आए होते हैं, हमें एक रिकग्निशन चाहिए होती है कि अच्छा तुम यहाँ आए हो, तुम जो मेहनत कर रहे हो, तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वो एक मोटिवेशन चाहिए होता है। तो आई थिंक ये अवार्ड शोज ही होते हैं जो हमें वो मोटिवेशन देते हैं। अदरवाइज ऑफ कोर्स हमारे फैंस हमें बताते रहते हैं एवरी डे कि अच्छा कितना प्यार करें, लेकिन ऑफ कोर्स ये चाहिए होता है कि ओके एक पुश फैंस क्या थोड़े फैंस थोड़े बायस हो जाते हैं, मुझे लगता है। ये जो अवार्ड्स होते हैं इनकी जूरी अनबायस होती है। हाँ। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा लगता है जब अवार्ड्स या मिलते हैं। डेफिनेटली ऑफ कोर्स बहुत मायने रखता है। आपका नया सॉन्ग आया था, वो भी काफी लोगों को पसंद आया है। आपने जयपुर में शूट किया है, राजस्थान में। कुछ बताना चाहिए किस तरह का लव मिल रहा है आपके फ्रेंड्स या निशांत सर ने क्या कॉम्प्लीमेंट किया? वो निशान सर ने तो बहुत तारीफें की थी वीडियो देखते ही, बोले तुम कितनी प्यारी लग रही हो। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारा प्यार मिल रहा है क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद म्यूजिक वीडियो किया था, तो मुझे था कि पता नहीं कैसा जाएगा, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट येस, आई थिंक मेरा करने वाला डिसीजन सही निकला है, लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। आप दोनों कब दिखेंगे ऐसे सॉन्ग में? देखो कई लोगों की कोशिशें जारी हैं। हाँ। जब सही वक्त आएगा जरूर। बातें चल रही हैं, बहुत बातें चल रही खूब सारी। हाँ, अभी देखते हैं। आप लोग दुआ करिए। सर थोड़े बिजी रहते हैं ना, सर डेट नहीं दे रहे। मैंने तो बोला है कि ठीक है कर लेते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ जब चलना चलो डेट पे, मानती नहीं है। मतलब आप डेट करना चाहिए सर? देखो इतना अच्छा लड़का है, कोई भी डेट करना हाँ चाहेगा। मैम आप बताइए, आपका जवाब दीजिए। ऐसे चाहूंगी, मतलब अच्छा लड़का है। मेरे जैसा लड़का तुम्हें मिले तुम खुश होगी ना, मेरे जैसा। लेकिन अभी पता नहीं ना, सिंगल है विंगल है, पता चले कहीं चल रहा है। I'm single and ready to mingle. कोई विश्वास ही नहीं करता मेरा, लेकिन nobody trusts me. सेट पे ना मैं बता रही हूँ 12 घंटे वो ईयरफोन्स लगा के लग रहा था, तो घुस 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 घुस। 1.5 साल पुरानी बात है ये। हाँ जितने भी साल में। 1.5 साल की बात। तो रेडी है तो चालू। अच्छा बेटा हम तो नहीं, आप बड़े चालू हैं लेकिन। थैंक यू। मैंने तो नहीं किया भाई, मेरे को बोलना। मैं फिर से हो गया ना भाई वीडियो? Okay, quickly. Okay. Because I'm tired. I'm sure, yeah, you guys also work just as hard. Yeah. बोलो. Congratulations मैम, काफी धमाकेदार दी रिश्ते अवार्ड में भी आपने Oh, किया, यार, और इंटरनेशनल आइकन अवार्ड में भी आप धमाकेदार कर रही है। क्या कहना चाहिए? अवार्ड में थोड़ा दिखाइए अवार्ड। इंटरनेशनल आइकन है, भारत की आइकन। दे दे। So yeah, next would be the global icon. I hope I can receive that too someday. Someday. We should never stop being hopeful. हाँ, तो what I think this year has been very special for me because I was actually given a lot of awards. कुछ ऐसे awards भी थे जो कभी भी नहीं मिले लाइफ में, like most fit and glamorous, because I thought I'm far from being glamorous. पर वो awards भी मुझे इस साल में मिले, तो जितना ये साल slow and agitating and depressing था in bits, उतना ही ये rewarding, awarding और teaching भी था. So I'm just all in all very grateful of 2020 and all the people who think that I am you know, credible enough to get these awards. आपका शो फिर से, जब शो कई सारे बंद हुए लेकिन आपका शो टीआरपी में फिर से नंबर 1 रहा। क्या कहना चाहिए? आपके फैंस आपको नंबर 1 रखते हैं हमेशा। So thank you to all the fans who were waiting for Kundi Bhagya to get back on TV, और उसके बाद फिर से वो उसने इतने अच्छे से पिकअप किया
वी वर वेरी स्कैर्ड, ऐसा लगा था पता नहीं अभी क्या होगा, शो की वापस से बिगनिंग है. तो इट वॉज बेसिकली आवर सेकेंड इनिंग and we managed to get the same kind of attention. I think it's commendable. The fans and followers of Kundali Bhagya, you are just so amazing. Thank you. जी रिश्ते अवार्ड में आप इमोशनल हो गए, क्लिप्स निकल के आए. मुझे लगता है कि तुम स्पेसिफिकली तुम मेरे कुछ बहुत ही ज़्यादा आर्डेंट फॉलोअर हो. यू डोंट मिस एनीथिंग दैट्स अबाउट मी ऑन द इंटरनेट. हाउ कूल इज दैट? Because the Rishte Award में एक छोटा segment है where they have do not touch your nose when you're outside because you don't know where you've touched, what other things you've touched. So sorry for that. The Rishte Award में एक छोटा section था which was dedicated to Sushant and reminiscing him, and Ankita was hosting it and performing it, and it just got a little too heavy in that moment to take. ओके, नए साल के लिए कुछ शुभकामनाएं. क्रिसमस आ रहा है, बहुत सारी शुभकामनाएं. You know, we shouldn't forget that even though this year has been fine for us, we have survived it. There are some people who've had, who've not had a great year or not as amazing, or even there are some people who've lost their loved ones and they've had terrible tragic things in the family because of COVID or because of things related to COVID or just generally. Yeah, I mean, my heart goes out to anyone who's suffered because of it, their families and everyone related to them. And now I just want to say that 2021 is here and a lot of hope comes with the new year, and let's just get into the new year with a lot of dreams and hopes and safety as our priority, and do not be afraid. Life is full of ups and downs, and there was a slight down, now there will be up. So कॉस्ट्यूम बतानी चाहिए, काफी ब्यूटीफुल ब्लू कलर का पिंक है. So, well, although I'm in blue, I am far from feeling blue right now. I'm actually feeling quite pink. I am not styled by anyone. I styled myself today. I quickly wore whatever was the first thing in my wardrobe. So I just wore that. You can see I'm minimal jewelry because there was no one at the last moment to style me for jewelry and everything. So it's all mine. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thanks. Ma'am, visual. Thank you, ma'am. मैम थोड़ा इस साइड आ जाओ, ये पोडियम बस बस. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके शो को अवार्ड मिला गया है. काफी हाई रेटेड शो है, नंबर 1 शो है स्टार प्लस का. कितने एक्साइटमेंट है इसका जो अवार्ड मिलने? अभी इस वक्त ये सिर्फ स्टार प्लस का नहीं, ये सारे चैनल्स का नंबर 1 शो है. तो वी आर रियली ब्लेस्ड दैट सारी जनता ने मिलकर हमें ये प्यार दिया है. सारे लोग इतने अच्छे से देखते हैं शो और सब स्टोरी से कनेक्ट कर पाते हैं. हर घर की ये कहानी है जो अनुपमा में दिखाया जा रहा है, दैट्स क्वाइट इन रियल स्पेस. तो इस वजह से आई थिंक हर एक घर का इंसान, चाहे वो बच्चा हो या फिर वो बड़ा हो, वो हर कोई हमारी कहानी से रिलेट कर पाता है और उसे उतना ही प्यार देता है जितना अब तक राजन सर के शोज़ को देते आए हैं. मैम, आप कुछ कहना है?
सो थैंक यू सो मच आप सभी को कि हमारा शो आप इतना पसंद कर रहे हैं एंड एवरी डे देर आर लाइक लॉयल ऑडियंसेस. अभी तक हमारा शो लाइक नंबर 1 है एंड आई एम ग्रेटफुल एंड थैंक यू राजन सर कि हाँ आपने हमें इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है, इतना बड़ा शो दिया है. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग आवर शो एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग अस. वेल काफ़ी हद तक तो इन दोनों ने सब कुछ कह दिया है. आई जस्ट ऐड ऑन कि जैसे कि पारस ने कहा कि जैसे हर घर की कहानी है और छोटी छोटी कहानियों से एक घर बनता है एंड हमारी जो एक पूरी कहानी है उससे हमारा घर बना है एंड वही आपके घरों में जब चलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप वो सब जैसे इसने बोला कि आप सब रेगुलरली शो को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं. हमें कॉन्स्टेंटली मैसेजेस आते हैं कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं, छोटे भाई के साथ क्या करने वाले हैं, बड़ा भाई क्या करने वाला है, शादी होगी नहीं होगी, मम्मी किसका साथ देंगी, भाई किसका साथ देगा, all of that. So it's very like all these things ना keep you on your toes कि हाँ हमें और अच्छा करना है और अच्छा प्रोवाइड करना है ताकि आप लोग हमें और प्यार दें और सराहें और that's about it. What was your reaction fans की तरफ से या अगर आप बाहर जाते तो वो क्या reaction होता है fans की तरफ? Oh my god, and they're so sweet. जब भी like whenever we go for shopping, हम like कभी भी जाते हैं तो they come, they're so like we love your show, we love your character. They are following the show regularly, so it's a very sweet gesture which we all adore and thank you guys so much कि आप सब हमें इतना प्यार दे रहे हैं. Okay, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है आप बता सकें तो? आने वाले दिनों में बस इतना बता सकते हैं कि बहुत कुछ होने वाला है. बहुत कुछ lovely surprises for everyone. और हर कोई हर कोई जो आगे होने वाला है वो देखकर खुशी होगा बिकॉज वो सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में भी देखने मिलती है. वो सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, सारी प्रॉब्लम्स से टैकल जिस तरह से करते हो आप एक्सपेक्ट करते हो कि अनुपमा भी जो मेरी मम्मी है शो में वो भी इसी तरह से प्ले करे. अब जस्ट से दैट एक टीम से शो बनता है तो हमारे टीम में जितने भी यूनिट मेंबर्स हैं, जितने एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर राजन सर, हमारे डायरेक्टर उमेश सर, एवरीवन उन लोग की हार्डवर्क की वजह से ये एक स्टोरी बनी है. And obviously, Anupama, Rupali ma'am is doing such a great job. I think no one could have played this role better than Rupali ma'am. So lots and lots of love to my mummy, and we rock together. We rock. Anupama rocks. Anupama rocks. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.